जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So, Dr. Ranganathan, where do you fit into this entire debate? Because I think lines are being crossed and I think something needs to be done. Good evening, Rahul. Look, I think there are three issues out here. Number one, I, like every sensible person, am absolutely appalled and disgusted by the comments made by Ranveer Allahabadiya or Beer and Biceps. If his intention was to be as sickening as possible, I think he's succeeded. Even Freud, who invented the term Oedipus complex, would have thrown his hands up in astonishment at what this incestuously deranged Ranveer has suggested. He clearly needs clinical or psychological help. As to the second issue of the danger to impressionable minds such utterances can have, I do agree this is an issue that needs to be addressed, because unlike a film that gets an adult certificate or is subject to restricted public viewing, here even children are exposed to such putrid thoughts. There is unrestricted access to all adult content, and that is clearly a problem. Now, on the third issue, on free speech, Rahul, my stand is well known. I am against any kind of censorship or arrest. To censor any film, book, play, show is plain wrong. Why do I say this? Because censoring or curbing freedom of expression is always a subjective decision, always. Look, we are a deeply polarized society. This isn't objectionable because polarization means you have a clash of ideas, that there is competition amongst them, and so it mirrors Darwinian evolution. Science, religion, capitalism, communism, right wing, left wing, intimacy, pornography, natural, unnatural mating. There's nothing wrong in professing diametrically opposite likes and dislikes and views, even if you hold entrenched views. But the problem comes when one party, one ideology, one dogma, one film mode, one system controls the discourse or weighs in on it. That's when you stop being objective and start to editorialize and play God. Because selecting what to flag, what not to, is a subjective decision, much like taking offense or an abuse or appreciating or condemning an idea. And it's not a question of whether laws exist or that they have to be followed. Of course they do, and they have to be. Point is, are there unjust, unscientific laws? Till recently, homosexuality was a criminal offense, was it not? The father of computing, who won Britain the war, committed suicide because he was hounded for being gay. Even today, a woman in this country can be arrested for merely quoting an Islamic scripture. What is offensive to you might not be offensive to me. Who is to decide what will cause offense? What will offend religious sensibilities? What is pornographic? Lastly, you want the truth? Behind our collective clamor to punish someone for his words lies our fear that our hypocrisy and double standards might be exposed. Rahul, we are a scared nation, and the first refuge of the scared is sanctimoniousness. This is the same country that reveres a grandfather who married a child not yet 10. This is the same country that has anointed as the father of the nation someone who abetted the murder of his own ailing wife by denying her the life-saving drug penicillin against the doctor's advice. This while he gladly took quinine and went down with malaria. This is the same country that has anointed as a Mahatma someone who in his mid-70s not only indulged in sickening incest and slept with his underage grandnieces and either forced or coerced multiple young women to sleep with him, but later gloated, quote, "All women stripped reluctantly at my prompting." This is the same country that knows these instances of pedophilia and incest are facts, but dare not mention them. And so a scared nation becomes sanctimonious. You want the truth, you can't handle the truth. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और ज़रूर रिएक्ट करिए, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बोलिए। तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं फ्री स्पीच के बारे में। और फ्री स्पीच का ये जो सिचुएशन है ये इसलिए आया है क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है, यूट्यूब में एक बहुत फेमस सा इंडियन कॉमेडी रोस्टिंग शो, जिसमें बहुत सारे जो एक हद तक के सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो आते हैं, इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो इन्फ्लुएंसर्स बोल सकते हैं इन लोगों को, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स। वो सब लगा के अपना भी रोस्ट करवाते हैं और ख़ुद भी रोस्ट करते हैं लोगों का। ये शो एक अमेरिकन शो है यूएसए में, किल टोनी। उसमें यूएसए का जो एक कल्चर है ना, आप लोगों को पता होगा, इंडिया में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इधर इंडिया के लोगों का। उनको जो भी यूएस से इंपोर्ट मिलता है उनको उधर से
जो भी उनको कूल लगता है उसको इधर लेके आके वो इधर का एक वर्जन बना देते हैं। तो फिर ये भी एक प्लेजरिस्टिक वर्जन ऑफ किल टोनी है। लोगों को बिठा देते हैं और रोस्ट करते हैं। किल टोनी में तो यूएस इलेक्शन 24 का जो इलेक्शन हुआ था उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का इम्पर्सनेशन करते हुए शेन गिलिस नाम का एक कॉमेडियन था और एक और बंदा था जो जो बाइडेन का इम्पर्सनेशन कर रहा था और उधर बहुत कॉमेडी हुआ था उधर। और उनका आपको पता है यूएस का जो लैंग्वेज है बिल्कुल क्रैश सा लैंग्वेज है। वो सेक्सुअल जोक्स मारते हैं, बहुत सारे जोक्स मारते हैं। तो फिर इधर भी यही कोशिश करते हैं पर एक मेलो डाउन वर्जन था। उधर का तो यूएस का तो बिल्कुल पॉलिटिकली इनकरेक्ट। और वो किल टोनी का जो कॉमेडियन है वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी जो बने हैं उनका प्रेसिडेंट बनने से पहले 24 का उनके रैली में भी जाके उन्होंने बहुत आपत्तिजनक कमेंट्स दिए थे उधर के जो मैक्सिकन लैटिनो अमेरिकन्स के अगेंस्ट और उनको बैन भी किया गया था। तो फिर वो बहुत एजी सा जोक्स होते थे इधर में। तो फिर इधर उनको ही कॉपी करने की कोशिश की थी इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है इधर। समय रैना जो एक कश्मीरी हिंदू हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, उनका रैना नाम सुनते ही आपको पता चलना चाहिए कश्मीरी पंडित हैं। और एक चेस इंथुजियास्ट भी है और एक ऐसे कॉमेडियन है जिनका एक इंडिया में एक नाम बना है, एक डार्क ह्यूमर होता है ना उसके ऊपर, डैंक कॉमेडियन। वो डैंक कॉमेडी करते हैं और बहुत डार्क बेस्ड कॉमेडी का एक पर्सपेक्टिव रखते हैं अपने ऑडियंस के ऊपर। और बहुत सारे जो इनके जो एपिसोड्स हुए इंडिया गॉट लैटेंट में जो एक एडल्ट स्टार पूनम पांडे और भी बहुत सारे लोग आके इधर अपना शिरकत कर चुके हैं इस चैनल में। पर इस टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा हड़कंप बच चुका है क्योंकि इस टाइम हमारे जो पॉडकास्टर फेमस है जिनको नरेंद्र मोदी जी ने भी इमर्जिंग इन्फ्लुएंसर्स ऐसे कुछ बहुत बड़ा अवार्ड दिया था और नरेंद्र मोदी जी ने खुद जिया था और जोक भी मारा था इनके सामने मिल के। तो फिर ये उस शो में गए और इन्होंने जो अपने माता पिताओं के बारे में कुछ सेक्सुअल सा जोक मारने की कोशिश की और ये जोक भी इन लोगों ने कॉपी किया था। एक यूएस की एक शो था उससे इधर छपका दिया था। आप लोगों को तो पता ही है कि ये जो एक तरीका है, एक कल्चरल इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं इंडियन लोग का, कि खासकर हमारे जो ये कॉमेडियन जेन जी वाले लोग हैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही चुल पड़ी हुई है साउथ कोरियन म्यूज़िक बैंड्स और उनके ड्रामास और अमेरिकन जो टेलर स्विफ्ट और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों का एक हजूम सा बड़ा हुआ है और ये जो जेनजी वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा ही इन लोगों को सर के ऊपर उछाल के रख देते हैं। जैसे बहुत सारे जो कॉमेडी शोज़ होते हैं आजकल इंडिया में, जो एक क्लब में बैठ के कॉमेडी करते हैं कॉमेडियंस, उस कॉमेडी में भी इनका जो जोक्स हुआ करते हैं, जैसे ये हमारे भगवान राम के ऊपर हुआ करते हैं, लक्ष्मी देवी के ऊपर हुआ करते हैं, हमारे इंडियन स्टेट के ऊपर हुआ करते हैं, एंटी नेशनल कॉमेडी भी हुआ करते हैं। वो सब कर होते हुए ये हंसते हैं ये लोग, इन लोगों को कुछ बुरा नहीं लगता है। और इस टाइम में भी जब ये रणवीर अलाहाबादिया इसने ये जब इंसेस्ट के ऊपर जोक किया, अपने माता पिताओं के ऊपर जोक किया, तो फिर लोग हंसने लगे और वो हंसने का एक बहुत बड़ा सा एक रिपरकशन हुआ कि नेट में ये फैल गया और लोगों को पता चलने लगा कि इसने एक बहुत वाहियात सा जोक मारा है। और समझ लीजिए अगर ये यूएस में ऐसा कोई जोक मारता कोई उनके ऐसे शो में, तो फिर वो उधर छोड़ देते, उनका कल्चर है, उनका एक लॉ भी है कि वो उधर कुछ भी बोल सकते हैं, उधर हेट स्पीच भी वैलिड स्पीच हुआ करता है। एलॉन मस्क ने आपको जैसे पता होगा अभी डॉज नाम का एक डॉज नाम का एक
डिपार्टमेंट खोला है। उस डिपार्टमेंट में एक 19 ईयर ओल्ड या 20 ईयर ओल्ड लड़का काम कर रहा है। उसने बहुत सालों पहले 2-3 साल पहले एक अपने ट्विटर हैंडल में कोई रेसिस्ट सा कमेंट इंडियंस के अगेंस्ट किया था। तो उस टाइम किसी मीडिया पर्सनल ने उस कमेंट को पकड़ लिया और इसको फायर करवा दिया उधर दोस्त से, पर उसको रीइंस्टेट करवा दिया एलन मस्क और जेडी वैंस ने। उन लोगों ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उस एज में लोग कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा कंट्री सब लोगों को जो भी करना है करने देता है, कैंसिल नहीं करता है। पर यूएस में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है, सॉरी। इंडिया में आप हमारा कल्चर डिफरेंट है यूएस के लोगों से। हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे इस वीडियो में हमारे आनंद रंगनाथन जी बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है। ये बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरा तरह खुला द्वार होना चाहिए, किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल सकते हैं, सिवाय कि आप फिज़िकल हार्म करना चाहें किसी से, उसके ऊपर नहीं बोल सकते। जैसे एक सिनेमा हॉल में जाके फायर बोल के लोगों का भगदड़ में मरवा दें। डिफेमेशन और ट्रीज़न, ये 3 छोड़ के जो भी करना है, कोई भी कॉमेडी करना है, ब्लास्फेमी करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। पर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे ट्विटर में जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं वो भी बोलते हैं कि ये जो अभी एफआईआर लगाया है इस इलाहाबादिया के अगेंस्ट, उसको रिसीड कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि ये जो शो है इसको बैन कर देना चाहिए, इसको पूरी तरह नल एंड वाइड कर देना चाहिए। जैसे एआईबी को कर दिया था। एआईबी भी बहुत अजीब सा हुआ करता था, पर उनका एक अजीब सा स्कैंडल हो गया था, मी टू और भी बहुत कुछ। तन्मय भट्ट को उसके बाद भी रिहेबिलिटेट कर दिया था, रिहैब हो गया था उनका, और अभी वो अपना मीम शीम लगाते हैं और उस पर अपना वो सब जो ऑडियंस उधर देखते हैं अपना यूट्यूब का। और वैसे ही ये रणबीर इलाहाबादिया जी ये जो हैं, इनका जो चैनल है वो एक बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है, नरेंद्र मोदी जी से भी अवार्ड लिया है। तो फिर ये एक ख्वाहिश है, मेरे को भी लगता है कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए, इस शो को बैन कर देना चाहिए। पर हो सकता है अरेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्टेट में आपको ऐसे सब बोलने का कोई राइट नहीं है। आप ऑब्सनिटी, जो स्टेट को ऑब्सनिटी लगता है, उस ऑब्सनिटी को आपको ऑब्सनिटी नहीं लग रहा है पर स्टेट को लग रहा है, तो फिर वो आपको बैन करेंगे। तो फिर आप तैयार रहिए। अगर आपको ऐसा कोई एजी सा डैंक सा कॉमेडी, डार्क कॉमेडी नाम का एक कॉमेडी करके आपको अपना ज़िंदगी और आपका जो एक पर्सनल लिबर्टी है उसको ताक में लगाना है, तो फिर करिए। इंडिया इज़ नॉट अ वेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच लविंग कंट्री। फ्रीडम है एक हद तक है, पर उससे ऊपर, एक हद के ऊपर जाओगे तो फिर वो फ्रीडम सब कुछ निकाल के बाहर में फेंक देते हैं इंडिया के लोग। और मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर डिक्टेटर्स इन देयर माइंडसेट। तो फिर वो डिक्टेटोरियल बिहेवियर ही दिखाएंगे इंडियंस। तो फिर वो सब नहीं सोचिए कि ये यूएसए है। और ये जेनजी वगैरह लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि आप इंडिया में रहते हो, आप यूएस में नहीं रहते हो। तो फिर यूएस का जो एक कल्चर है इधर मत लेके आइए, क्योंकि इधर बहुत सारे जो हमारे तबका है इंडिया में वो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। उनको अभी भी लगता है कि आप ये सब जोक नहीं मार सकते माता पिताओं के ऊपर। वो घर वर में बैठ के मार सकते हैं, पर पूरा ऑडियंस में दिखा के नहीं मार सकते। प्राइवेटली मार सकते हैं, पर अपने ऑडियंस में दिखा के नहीं मार सकते। तो फिर ये सब जो एक तरीका है, इसको बैन नहीं बोलता मैं, इसको छोड़ देना चाहिए अपने ही भलाई के लिए। तो फिर देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि अरेस्ट हो भी सकता है। तो अरेस्ट होता है और कोई और एक्शन लिया जाता है इस इलाहाबादी अगेंस्ट, तो फिर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो फिर आपको क्या लगता है इसके ऊपर, आप अपना राय ज़रूर व्यक्त करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोग देखें। तो फिर अच्छा है, चलते रहना चाहिए कॉमेडी। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव एंड टेक केयर दोस्तों।